Yes, good morning, students. Let me start with our lecture. Anyone can remind me हम कहाँ पे थे last time? Yes, Archita. Archita. Let's see for now. I think so. We were on the healthy me, normal me method, and we should start from here. Yes. This is self-esteem. Yes. We were on the healthy me, normal me में देखते हैं. So I think so. We should have started with this one. हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, राइट? निशा, सौरभ, अकरम और क्रिस्टोफर और डेजी का लास्ट टाइम. जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स. Okay, Arjita. So message me the page. I think so. We are on here only. We are going to start with the 5.1. ठीक है? With the examples हमने देखा था, मनीषा का भी देखा था. We were in the 5.1. Then now 5.2. ठीक है? We have started with this one, the fifth. Just a second. Yes, student. So last time we have seen the activities. So we have seen the activities जिसमें हमने निशा सौरभ के एग्जाम्पल्स देखे थे अलग अलग. ठीक है? Now in the 5.1 we are going to start. It is the mental health in normal. We have अच्छा एक्टिविटी 2 हमने कंप्लीट किया है.
रुस्तम, सैम्यूल। हाँ नहीं, एक्टिविटी हमने नहीं किया है। एक्टिविटी हमें स्टार्ट करना है आज। एक्टिविटी 2 हमें स्टार्ट करना है। तो हम ये फटाफट एक एक्टिविटी 2 का हम एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले 5.1 पे एक छोटी सी रीडिंग, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल बिहेवियर सम इंडिकेटर्स है। While there can be some disagreement of the absolute definition of mental health and normal behavior, some indicators are seen in the universal accepted to indicate mentally healthy and normal individual. The foremost among this is being well adjusted individual. यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हम बोलते हैं वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल। वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आप हेल्दी हो एक सोसाइटी में रहने के लिए। और सोसाइटी में इंसान कब हम बोलते हैं ही इज एन फिजिकली और मेंटली फिट, जब वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है, जब चीजों को वो सही तरीके से लेता है, ठीक है। ये एक चीज होती है। दूसरा एक है यहाँ पे नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। दैट इज द वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग में। Activity 2 following are the few examples of well adjusted individual. Hmm? Now examine this example and try to come up with the sum of the criteria of well adjusted individual. Number 1, Manisha. यहाँ हमने किया हुआ है एक दो एग्जाम्पल्स, बट फिर भी बार देख लेते हैं क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग इट एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेम्बर। Manisha experienced a breakup recently and went through a lot of emotional turmoil for some time. However, she managed to get over it and successfully concentrate on her studies. ठीक। Second है Samuel. Samuel was insulted by his teacher in in front of the entire class. He felt very bad about it and even cried for a couple of days. Soon he got over and he went back to his normal routine. The second example is Samuel का. The first was the Manisha. The third was Rustam's parents trust and support him. They give him freedom. At the same time, they hold him accountable for his action. Now, Rustam understand their concern and respect them. Rustam has warm relation with his parent. The next one we can see Geeta. Geeta doesn't want to choose dance. Geeta doesn't want to choose dance as her career because she knows that she cannot dance well. At the same time, she knows she is good in languages, so she can pick up her career as a language teacher or translator or a journalist. Okay. Jenny has recently moved to a metropolitan city. Metropolitan city to complete her education. The college culture is extremely different from the one she is accustomed to. However, she take efforts to adjust to it. She is open for making new acquaintance and learning new skills. Okay. Number 6, Rashid get along with other. He understands their problem and issues. People feel uncomfortable in his presence. Number 7, Jasminder is a hardworking boy. He feels good about himself, but at the same time, he is not pompous. He understands his strength and weakness. He is proud of his strength, yet realize that sorry that he need to work on his weakness without feeling shameful about them. Okay? Huh?
ये सारे जो एग्जाम्पल्स हमने देखे, ठीक है, सेवेंथ वन। सॉरी। तो डू यू थिंक कि दिस पर्सनालिटी या ये जो लोग हैं ये सोसाइटी में वेल एग्जिस्टेड पर्सनालिटीज है, ठीक है, ये टाइप के लोग। नाउ देयर आर द टोटल सेवन। लेट मी आस्क समवन एल्स। सिद्रा हुसैन, सिद्रा, सिद्रा, अनम्यूट करो अपने आप को। सिद्रा, अनम्यूट योरसेल्फ। सिद्रा, आवाज आ रही मेरी? नहीं आ रही है, सिद्रा गायब। ओके, जिनल, जिनल दवे, जिनल दवे। नहीं है वो भी। गुनैफ, गुनैफ। यस मैम। हाँ, चलो, थैंक गॉड तुम जाग रहे हो। बाकी लड़कियां तो गायब है लगता है। अच्छा गुनैफ, ये जो हमें कंडीशन दिखाई दे रही है टोटल सेवन एग्जाम्पल्स है। तो सेवन जो जी एग्जाम्पल्स है, डू यू थिंक कि ये जो लोग हैं दे आर वेल एग्जिस्टेड इन दी, एडजस्टमेंट कर पाते हैं सोसाइटी में? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पीपल, एक्टिविटी एग्जाम्पल्स में लग रहे हैं। मैम, वो उनके हिसाब से कर लें। इनके हिसाब से चल रहा है, ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से कैसे चल सकते हैं वो? अच्छा चलो, कोई भी मुझे इसमें से तीन एग्जाम्पल्स दे दो, तीन एग्जाम्पल्स का एक्सप्लेन कर दो मुझे, एनी। किस गुजर, आवाज आ रही है मेरी? बोलो। हाँ हाँ, आ रही है मैम। हाँ, तो किसी भी तीन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर दो। तो गुरु, मैम तो मैं बता रहा हूँ। आवाज तुम्हारी ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हो? बता रहा हूँ मैम। अरे इतना टाइम तुमको स्क्रीन पे ऑलरेडी है, तुम ये स्क्रीन के ऊपर देख के कोई भी ये एक्टिविटीज बता दो ना, कोई भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दो। इतना ही मैम टाइम 10 जाएगा? और बोलो। जुनैद, यस मैम। भाई इतना टाइम? The examples was written on the screen, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है। From this only you have to just explain how it is going to be connect with the well existed in society. That's it. आपको अलग से थोड़ी ना एग्जाम्पल बोला जा रहा है देने के लिए।
एनीवन एल्स कैन? कोई और बता सकता है? कोई और है जो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकता है? यस नेहा? हाँ स्नेहा, अनम्यूट करो और बताओ। कोई भी बता सकते हैं ना? हाँ हाँ, एनी ऑफ द थ्री। Geeta doesn't want to choose dance as her career because she हम्म knows that she cannot dance well. At the हम्म same time, she knows that she is good in languages, so she can take up her career as a language teacher, translator or a journalist. मैम हम्म इसमें बताया है कि गीता जो है वो डांस अच्छे से नहीं कर सकती। हम्म उसको मतलब लैंग्वेजेस वगैरह में वो अच्छी है। वो हम्म लैंग्वेज की टीचर या जर्नलिस्ट बन सकती है, लेकिन उसने एज अ डांस करियर चूज किया होगा। नहीं किया है उसने। ओके। उसने नहीं चूज किया। देखो, यहाँ पे तुम चीजें समझ नहीं पा रहे हो। कुछ चीजें ऐसी होती है ना सोसाइटी जो में हम जो चाहते हैं वो हम कर नहीं सकते, है ना। इसमें दो से तीन रीजन हो सकती है, माइट बी जो कुछ चीजें होती है वो सोसाइटी के खिलाफ होती है, जो सोसाइटी पसंद नहीं करती है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं होती, हमारी चूज में नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सोसाइटी चाहती है कि हम करें, लेकिन हम कर नहीं सकते उसको, लेकिन मजबूरी में हमें करना होता है वो। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैरिजेस, ये सारी चीजें हो गई। फिर कुछ लड़कियों के ऊपर होती है लाइक एजुकेशन को लेके, या और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये चीजें ऐसी है जो हम सोसाइटी में वेल एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर मम्मी पापा ने मना कर दिया कि घर पे तुझको 11 बजे या 10 बजे तक तो आना ही आना है, 10 बजे के बाद वी विल नॉट अलाउ यू, याद रखो ये हम नहीं सह सकते। तो आप तो एक सोसाइटी को एडजस्ट करते हुए, अपने आप को एडजस्ट करते हुए, व्हाट यू विल डू, यू विल कम शार्प 10 PM एट होम। कहीं पे भी आप रहोगे, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, आप 10 बजे 9 बजे तक आप घर पे आना ही आना है, लास्ट टू लास्ट, ठीक है। इसी तरीके से लड़के लोग के लिए भी है कि वी आर गिविंग यू द फ्रीडम टू गो एनीवेयर एल्स, राइट। मैं आपको, हम आपको पैसे देते हैं, आपको मोबाइल फोन देते हैं, बट द थिंग इज दैट आफ्टर दिस एज यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट टू योरसेल्फ। तुझे एक जॉब देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। आपको जॉब नहीं करने का मन होता है, लेकिन समटाइम्स कुछ पैशनेट लोग होते हैं जो अपने पैशंस को कंप्लीट करने के लिए दे आर स्ट्रगलिंग। बट द पीपल हु आर नॉट ट्राइंग टू इवन वर्क, वर्क के छोड़ दो, वो सोचते भी नहीं, तो भी उनको उस क्राइटेरिया में रहना होता है, और उसी के प्रेशर में कुछ ना कुछ वो बन जाते हैं। तो ये है जहाँ पे हम वेल एडजस्ट होते हैं सोसाइटी में। लोगों के साथ रहना है तो कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है। और हाँ, ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते, ये कॉम्प्रोमाइज सामने वाला, सोसाइटी में हर एक इंसान रहने वाला कॉम्प्रोमाइज करता है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं कि अपने आप को गिरा के बड़े बनो, ठीक है। अपने आप को गिराओ और फिर बाद में आप बड़े बन जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए आपको वो चीज करनी है। कॉम्प्रोमाइज मतलब मैंने क्या बोला आपको, कि आपको घर में स्ट्रिक्टली रूल्स है कि आपको 10 बजे तक घर पे आना है, आपको इतना टाइम दिया गया ना कि आप बाहर रह सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप जॉब पे जाते हो, कहीं और जाते हो, यू आर विथ योर फ्रेंड्स, यू हैव योर पर्सनल स्पेस, कुछ भी है, तो आपको कैसे भी करके आना है। तो आप ये नहीं कि आप ओ मुझे तो सुनना पड़ रहा है, मैं तो मजबूर हूँ, ये है वो है, नहीं। आपको पता है यू आर लिविंग इन वन ऑफ द फैमिली, और जो चीजें ठीक नहीं है, एक्चुअली दिस इज नॉट द मॉरली राइट, तो उस चीज को फॉलो तो करना ही होगा। जैसे हम दूसरे क्राइम्स को लेते हैं, चोरी हो गई, अब्यूज हो गए, दुनिया भर के से बहुत सारे क्राइम्स हो गए, मर्डर हो गए, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते ना, हमारे लिए खराब है। लेकिन एक्चुअल जो अक्यूज है यहाँ पे, जिसने गलत काम किया, उसके लिए तो गलत काम है ही नहीं, उसने तो इंटेंशनली ये किया हुआ है। इसी तरीके से काफी चीजें ऐसी होती है जो हमें सोसाइटी में वेल एडजस्टमेंट दिखाती है, ठीक है। नाउ वेलकम टू दी वन बाय वन, एक एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, एक मिनट है फ्रेंड्स।
तो पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे। Manisha experienced a breakup recently and went through a lot of emotional turmoil for some time. However, she managed to get over it and successfully concentrate on her studies. अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सोसाइटी के लिए, ठीक है। हम एक ही चीज इसमें देखेंगे कि नॉर्मल मी, हेल्दी मी, चैप्टर ये है मी अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, द मनीषा इज जस्ट सफरिंग सम ऑफ द इश्यूज खुद। यहाँ पे इंडिविजुअल जब एग्जिस्ट करेगा तभी तो सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा, है ना, हर एक चीजों से। तो मनीषा यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रही है, उसका एक ब्रेकअप हुआ है, काफी इमोशनल टर्मोइल है, लेकिन उससे सबसे अच्छी चीज बात क्या हो गई कि वो वापस से खड़ी हुई अपने पैरों पे, पैरों इन द सेंस अपने सेंसेस में। और उसने जहां पे वो स्टॉप हुई थी वो चीजों के लिए, एंड शी स्टार्टेड एंड बिगनिंग विद अ न्यू चैप्टर ऑफ द लाइफ, ठीक है। जो समझ गई वो कि जो हुआ सो हुआ, let it be, I'll start with my new chapter of the life, ठीक है। Now, Samuel was insulted by his teacher in front of the entire class. He felt very bad about it and even cried for a couple of days. Soon he got over it and went back to his normal routine. हम सबने कभी ना कभी डांट सुनी होगी टीचर से, ठीक है, अभी भी सुन रहे हैं हम। तो ये जो चीज है कभी कभी हमें हर्ट कर देती है, because all the teachers are not same and all the students are not same। फिर भी हम अपने परसेप्शन बना लेते हैं कि ये शायद ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, जो सही नहीं है। कुछ बच्चे लोग टीचर्स के लिए भी वैसे ही सोचते हैं, बट वो भी सही नहीं है, ठीक है। बट सैम्यूअल एक अंडरस्टैंडिंग बॉय था, उसे गुस्सा भी आया होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। उसे मन किया होगा कि मैं दो बात मैम को मैं सुना दूं, ऐसे नहीं वैसे। फिर उसने बहुत ज्यादा टीचर को इंसल्ट किया क्लास में, दैट इज नॉट एन, मतलब नहीं, वो भी ठीक इतनी चीज नहीं है, ठीक है। उसे बुरा लगा जो कुछ भी है, लेकिन ये सब होने के बाद भी ही ट्राइज टू मेक स्टैंड हिमसेल्फ अगेन। वो वापस से अपने नॉर्मल रूटीन में आ गया, मतलब उसे काफी सा रोना भी फील हुआ, वो रोया वोया सब कुछ अकेले में बैठ के, फिर वापस नॉर्मल रूटीन में आ गया। वो समझ गया, ही मेक हिमसेल्फ अंडरस्टैंड अबाउट एनी हाउ, कैसे भी करके उसने अपने आप को समझाया, एंड ही कम टू द नॉर्मल कंडीशन। नाउ कम टू द रुस्तम पेरेंट्स। रुस्तम पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एक मिनट। तो रुस्तम पेरेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं रुस्तम को, एंड उसको काफी अच्छा फ्रीडम दे के रखा हुआ है। बट उसी टाइम पे उसे बताया जाता है कि ये फ्रीडम को उसे मिसयूज नहीं करना है। ये चीज हो गई। सो रुस्तम अंडरस्टैंड द कंसर्न, तो रुस्तम को समझ में आया भाई कि अभी मम्मी पापा जो बोल रहे हैं ना वो सही है, मेरे कंसर्न के लिए बात कर रहे हैं। वैसे भी इन्होंने इतना फ्रीडम दे के रखा हुआ है मुझे, मुझे उसका मिसयूज नहीं उठाना है। मना कर रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं वो मेरे अच्छे के लिए है, ठीक है। तो उसे समझ में आई अपने मम्मी पापा की बातें, एंड फाइनली उनके जो भी चीजें थी, लाइक जो भी फैसला होता था, जो भी डिसीजन होता था, रुस्तम वहां पे उनकी रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। तो रुस्तम हैज वार्म रिलेशन विद हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट है गीता। गीता को यहाँ पे डांस पसंद है। गीता को डांस पसंद है एज अ हॉबी के तौर पे, लेकिन करियर वाइज वो चूज नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि डांस एक जब हॉबी होती है ना तो वो एक हॉबी बन के रहती है, उसमें हम ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपने आप को नहीं देते हैं, कॉन्फिडेंस कम होता है हॉबीज में। हॉबीज पता है आपको चेंज भी हो सकती है एनी टाइम, ठीक है, लेकिन जो पैशंस होते हैं वो आपके चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे गीता ने कहा डांस मुझे पसंद है, लेकिन एज एन करियर बेस्ट मैं इसको चूज नहीं कर सकती, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू गो फॉर दी लॉन्ग लाइफ के लिए।
बट उसी सेम टाइम पे उसको ये रियलाइज होता है कि शी इज गुड इन द लैंग्वेजेस। हाँ, तो क्यों ना, जिस चीज में बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आपको डांस भी अच्छा लगता है, आपको कुकिंग भी बहुत पसंद है, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बट आपका जो करियर है ये तीनों चीज में एक साथ नहीं बन सकता। तो बाकी दो चीजों को एज एन हॉबी रख के आप थर्ड को आप अपना करियर ऑप्शन बना सकते हो। ठीक है। सो गीता यहाँ पे अंडरस्टैंड कर दी और उसने अपना करियर जो है टीचर, ट्रांसलेटर और या तो जर्नलिस्ट में बनाने के लिए ट्राई किया। नाउ जेनी रिसेंटली मूव टू द मेट्रोपोलियन सिटी में गया यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में। जो कॉलेज का कल्चर था वो टोटली ही अलग था एकदम। However, she take effort to exist it. यहाँ पे उसने एक अलग माहौल पाया, एक अलग पढ़ाई पाई उसने। और लेकिन जेनी ने अपनी पूरी यहाँ पे 100% दी। उसको जो भी लगा कि ये चीज यहाँ से ग्रैब कर सकती है, सीख सकती है, उसने एक अलग स्टेट में आके अलग पढ़ाई करने के बाद में उसने शी ट्राइड हर बेस्ट टू गेट इनटू दैट। ठीक है। So Rashid get along well with others. He understands the problems and issues. People feel comfortable with his presence. ठीक है। ना नहीं चाहिए होता है, बहुत ज्यादा है। रशीद यहाँ पे गेट अलोंग विथ अदर्स, और वो दूसरी की प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो है समझता है, और लोग उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताने में काफी कंफर्टेबल होते हैं, या कोई भी उससे सजेशन लेने में। ठीक है। Jasminder is a hard-working boy. He feels good about himself. At the same time, he's not in pompous. He understands the strength and weakness. He isn't proud of his strength, yet realizes that he need to work on the weakness. मतलब बोलते हैं ना कि पोम्पियस वो इंसान होता है जो अपनी वीकनेस दूसरों को बताता नहीं है और जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जसमिंदर एक ऐसा पर्सन है जहाँ पे उसको अपनी वीकनेस पता है, एंड विदाउट फीलिंग द शेमफुल उसको उस जो चीजें हैं जिसमें उसकी कमी है वो उसके ऊपर काम करता है। तो देर आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स। इस सारे एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो हर इंसान कोई ना कोई तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया से अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट कर रहा है। नाउ कम टू द 5.13। As we might have to interpret the examples about the five criteria are well adjusted individual, realistic perception of self and the world, अपने बारे में जानना, परसेप्शन ऑफ सेल्फ, अपना सेल्फ परसेप्शन करना वर्ल्ड का, ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस, हाई इमोशन इंटेलिजेंस होते हैं, कैपेबिलिटी टू मेंटेन हेल्दी रिलेशन, यहाँ पे अच्छे हेल्दी रिलेशंस बनाते हैं ऐसे लोग, हाई सेल्फ एस्टीम होते हैं। ठीक है। Beside this criteria, there are some other criteria of well-adjusted individual, like expressing gratitude, then kindness, sharing, and accepting the success and failure as a part of life. मतलब एक बार ये फेलियर बन भी जाते हैं लाइफ में तो ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होते। अगर हो भी गए, एंड फॉर सम टाइम्स अगेन दे विल स्टैंड टू वर्क ऑन दैट अगेन। नाउ कम टू द रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड द वर्ल्ड। आई जस्ट वांट टू रीड समवन। कौन रीड कर सकता है? स्नेहा रीड करोगे? नेहा, हु कैन रीड? स्टूडेंट। आरती, अर्चना। आरती Yes, अनम्यूट करो अपने ma'am. आप को।
हाँ अर्चना, ये वाला रीड करो, रियलिस्टिक परसेप्शन वाला। Mahzubin and Sheena were good friends. Mahzubin placed a lot of trust in Sheena. However, Sheena betrayed her. Mahzubin felt very sad about it and was upset for quite some time. Uh, she soon realized that the world is full of different kind of people and things will not necessarily happen as she wishes. She realized that while trusting somebody can be her choice, nobody can guarantee that the other person will reciprocate. Like Mazbin well adjust individual accept the world as it is without having unrealistic expectation from others. So their relationships are more easygoing, comfortable, and conflict free. They are aware of their strengths and weakness. They have realistic perception of themselves and their world. They can use their strength for the betterment, and they can modify or accept their weakness. As a result, they can develop deeper capacity to deal with their life one more effectively. So life become more manageable for such individuals. रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड द वर्ल्ड, हम देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये। जस्ट अ सेकेंड। मेहजबीन एंड शीना दो अच्छे फ्रेंड है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ट्रस्ट भी करते हैं। हाउएवर दी शीना बीट्रे हर, शीना उसको बीट्रे करती है, मतलब इंसल्ट वी कैन से। मेहजबीन felt very sad about it and was upset for quite some time। यहाँ पे तो एक मिनट, मेहजबीन फेल बहुत बुरा लगा उसको कि शीना उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। सो हाई वाज शी शुड रियलाइज दैट द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है ना, ये ऐसे ही पूरे भरे हुए हैं। हम्म और जैसा वो चाह रही है वो वैसा हमेशा नहीं हो सकता। तो शी रियलाइज दैट व्हाइल ट्रस्टिंग समबडी कैन बी हर चॉइस, वो उसकी चॉइस हो सकती है, बट नो बडी कैन गारंटी, बट यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको कि सेम चीज आप जिसके लिए जैसा सोच रहे हो वो भी आपके लिए वैसे ही करे, या वैसे ही सोचे। कभी कभी होता है ऐसा कि हम सबको अपनी बेस्ट फ्रेंड बना के हम सारी चीजें बता देते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन जब वही टाइम आता है तो वही फ्रेंड आपको वापस से रिवर्ट बैक देते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड। तो आपको लगता है यार मैंने क्या इस रिलेशन को लेके क्या सोचा था, एंड व्हाट इज हैपनिंग टू मी। तो महजबीन और शीना के भी केसेस में यही हुआ। So, like the Mahzabin, well-adjusted individual accept the world as it is without having unrealistic expectation from other. So their relationship are more easy going, comfortable and conflict free. ठीक है, तो देर आर अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यहाँ पे महजबीन वेल एग्जिस्टेड है, वो सोसाइटी में उसे ये चीज पता चल रही है कि आज के दुनिया में अब एक्सपेक्टेशन करना ये इतना इजी नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट एंड द इजी गोइंग कंफर्टेबल नहीं है। सो वी हैव टू कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें लड़नी पड़ेगी, एंड वी आर हियर फ्री। दे आर अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेस, उसे महजबीन को अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ की पता चल गई है। दे हैव रियलिस्टिक परसेप्शन एंड ऑफ देमसेल्फ एंड देयर वर्ल्ड। दे कैन बी यूज द स्ट्रेंथ फॉर दी, अपनी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही हम यूज कर सकते हैं किसी चीज के लिए। जैसे स्ट्रेंथ हो गया हम अपने बेटरमेंट के लिए, और अपनी चीजें जो है मॉडिफाई करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे वीकनेस। एज अ रिजल्ट दे डेवलप द डीपर कैपेसिटी टू डील विद देयर लाइफ। हम अपनी जो स्ट्रेंथ होती है, हम वीकनेस को साइड में, हम वीकनेस को हटा नहीं सकते बट हमको कमी पता है अपनी, तो उस चीज को थोड़ा सा साइड में रख के हम अपनी स्ट्रेंथ को ज्यादा अहमियत देंगे, एंड द लाइफ विल बी मोर इफेक्टिवली। सो लाइफ बिकम मोर मैनेजेबल फॉर सच इंडिविजुअल।
ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. राहुल इज अ गुड स्पीकर. ही हैज won many prizes. एक मिनट. He won many prizes in elocution and debate competition. In one state level prestigious competition, he failed the first prize. उसको first prize नहीं मिला, लेकिन वो upset नहीं हुआ because he knew that in the real world winning or losing is a part of the game. ये सिर्फ एक part है game का. तो आप जो हमेशा चाहते हो वो तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. So we always know the success of failure temporary, but hard work and consistency with these go long away. Okay. Just giving you a minute. आप ये पेज एक बार देखो, फटाफट देख लो एक बार पेज आप. ठीक है. बहुत अच्छे. उसके बाद हो गया. चलो, we will go for the next one. Now come to the openness to new experiences. ठीक है. So Jenny worked in a marketing firm. Recently, she and her colleague were told to travel to some of the remote rural parts of the state for some office work. His colleague developed cold feet at the thought of traveling to remote and unknown villages and interacting with the people there. But Jenny was open to the task and even looked forward to meet different people. Now हम इस ये एग्जाम्पल्स में ही लेंगे, बट दिस एग्जाम्पल वॉज थोड़ा सा ज्यादा एलेबरेट कर दिया है. ठीक है. कि जेनी एक मार्केटिंग फर्म में थी, तो उन लोगों को एक टास्क दिया गया. ठीक है. कि जेनी और उसका फ्रेंड दोनों जाएंगे वहां पे दूसरी जगह पे, और रिमोट पार्ट था वो, मतलब गांव खेड़ी या तो बहुत दूर ऐसी जगह पे जहाँ पे गांव पकड़ लो. ठीक है. तो वहां पे उनको जाना था, पार्ट ऑफ द स्टेट, और कुछ ऑफिस वर्क करके आने थे. लेकिन उसका फ्रेंड कंफर्टेबल नहीं था वहां पे, या नहीं थी. तो जेनी की जो फ्रेंड थी वो कंफर्टेबल नहीं थी उसके साथ जाने के लिए, कि गांव में हम जाएंगे तो क्या करेंगे, ट्रैवलिंग उसे नहीं पसंद वो चीजें, और कहीं ना कहीं उसे चीज मतलब डर भी लगता था कि हम क्या करेंगे वहां पे जाके वगैरह वगैरह. और कैसे वो इंटरेक्ट करेगी लोगों के साथ में, ये सारी चीजें. बट जेनी को ये चीज का टेंशन नहीं था, बिकॉज जेनी वॉज एन गुड कम्युनिकेटर. आप कभी भी देखोगे तो मार्केट के जो बंदे होते हैं ना, वो बहुत ही ओपन होते हैं एंड देयर कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी गुड. जहाँ पे वो लोगों को बहुत जल्दी से अपील कर लेते हैं किसी भी चीज के लिए. तो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द जेनी. तो वो जाने के लिए रेडी हो गई. Now, an individual who can try new things, okay, who can deal normally with stranger, his confidence in voicing honest opinion fits in the criteria. Such individual try out new things like fashion, explore new places, reach out to different people comfortably. Well adjusted individual are more open to new experience. कभी भी हम जब वेल एडजस्टेड की बात करते हैं तो हम एक न्यू एक्सपीरियंस लेते हैं.
वी ऑलवेज टेक अ न्यू एक्सपीरियंसेस हम फेस करते हैं. दे डोंट माइंड ट्राइंग टू न्यू थिंग्स. वो कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते अननोन एक्सपीरियंस को लेके. दे हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ टू एक्सप्लोर अ न्यू थिंग. वहां पे वो एक न्यू चीज ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद में डेफिनेटली जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट के लिए ये वो चीज के लिए डरते नहीं है, बट वो काफी कॉन्फिडेंशियल और ऑनेस्ट टाइप के पर्सन होते हैं जो ऐसी चीजें ट्राई करते हैं. ठीक है ना. एक्टिविटी में यहाँ पे देखेंगे. थिंक अबाउट सम नेगेटिव इंसिडेंट इन योर लाइफ व्हेन थिंग्स डिडंट go as your wish. Thinks about the time when you required to move out your comfort zone and try out the different new things or experiences. How did you deal with them? How would you rate yourself on the two parameter of realistic perception of self and the world openness to the new experiences? ये एक्टिविटी 3 में सारे क्वेश्चन ही भरे हुए हैं. सारे क्वेश्चन से जो आपको खुद सोच के अपने आप को ये इवेल्युएट करना है. आपको यस और नो बोलना है, आपको डिस्क्राइब करना है. ठीक है. दिस इज योर द पर्सनल. और वो चीजों पे यस हाँ नो आता है, देन यू आर गोइंग टू बी दी लाइक सेल्फ वेल एडजस्टेड पीपल आएंगे अब उसमें. कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दिस इमोशनल इंटेलिजेंस. इसमें हम इमोशनल अगर इंटेलिजेंस लेंगे तो एज यू नो अबाउट, हमने लास्ट पेजेस पे भी कुछ हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को हल्का फुल्का पढ़ा हुआ था. इसमें हम देखते हैं इमोशंस का मतलब भी होता है एक इमोशनली कनेक्टेड. ठीक है. लेकिन इसमें कैसे हम देख सकते हैं सोसाइटी में वेल एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस हर एक पार्ट में उसका डिफरेंट रोल होता है. हम्म? A very intelligent student from your class is stressed to achieve better grades. He is unable to make new friends or enjoy life. He doesn't. एक minute. Sorry. Just a second. पेज आगे चला गया. हाँ. अब तो यहाँ पे हम देखेंगे better grades. He is unable to make new friends or enjoy life. He doesn't share things with others, and sometimes he is so depressed that he falls sick very often. Become nervous at things like the losing marks or losing his rank in the class. ठीक है. सो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया होगा कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इमोशन. किसी ने अगर आपको डांट भी दिया, ऐसे टाइप के बंदे जो होते हैं, पर्सन होते हैं, अगर उनको डांट भी दिया तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं. वो इतने ज्यादा इमोशन हो जाते हैं कि कभी कभी वो एक्शंस को भी ध्यान में नहीं रखते अपने. ठीक है. तो यहाँ पे ये टाइप के जो बंदे हैं उनको अपना कोई भी चीज अचीवमेंट करना होता है तो उसके लिए दिलो जान लगा देते हैं. ऐसे टाइप बंदे अगर अचीव कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो वो ट्रॉमा में भी जाते हैं ऐसे लोग. ठीक है. यही टाइप के जो पर्सन है वो अपनी चीजें जल्दी शेयर नहीं करते. हम्म. एंड यहाँ पे इस केस में अगर देखेंगे तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं. फॉल सिक्स वेरी ओपन, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. हर छोटी छोटी चीज पे नर्वस हो जाते हैं. लाइक लूजिंग मार्क्स और हाई रैंक आ गया तो हाई रैंक आ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लो आ गया तो भाई यहाँ पे उसकी तबीयत खराब होना 100% श्योर है. Now the term emotional intelligence was coined by the Michael Baldock in 1964. Daniel Goleman further elaborated the term. According to the Mayer and Dissolvi, emotional intelligence is the ability to perceive own wants and the other emotion to discriminate among them and to use the information to guide one's thinking and action.
information to guide one thinking and action. It has four proposed abilities. इसके अंदर बहुत ही खास 4 टाइप की एबिलिटीज होती है. एक मिनट बता रही हूँ. हाँ, पहला है perceiving emotion. The other one is using emotion. Third one is understanding emotion. Fourth one is managing emotions. ठीक है, ये सारे जो emotions है ये उनकी abilities होती है. And this is the parts of the emotion intelligence. Now, people with high emotional intelligence are well adjusted. यहाँ पे जो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं वो वेल एडजस्टेड होते हैं. ऐसा नहीं है क्योंकि इमोशनल इंसान बहुत आगे पीछे सोचता है. ठीक है, बिकॉज दे कैन डील विद अदर एंड देमसेल्फ इन बेटर वे. क्योंकि वो खुद उनको पता है कि क्या सोसाइटी की उस लोगों के लिए क्या बुरी बात है क्या अच्छी बात है. तो वो उनको समझाते भी हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं. एंड कहीं पे अगर कोई गलत जा रहा है तो वहां पे उसको टोकते भी है. These are the quality of the high intelligence people, high emotional intelligence people. They can control their emotions and are able to handle the situation in appropriate way. They don't get panic easily. As a result, they are able to come up with a proper solution in a crucial situation. उनको ऐसा लगता है कि the situation is getting worst. ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है कि चीजें काफी बिगड़ने वाली है. वो वहीं पे उस चीज को संभाल लेते हैं. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, social skill, empathy, self motivation. This is all the part of the emotional intelligence. धार्मिक 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 की आवाज नहीं आ रही है. फलक, यस मैम. फलक यहाँ से बेटा रीड करो. कहाँ से मैम? ये वो प्रीवियसली थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस है. वो अच्छा, द वेरी कंटिन्यूशन. इंटेलिजेंट स्टूडेंट हाँ, से. इंक्लूडिंग, हाँ सी से इंक्लूडिंग द एक्टिविटी 4 ऑल्सो. हाँ, ओके मैम. एक मिनट, लेट मी स्क्रीन को थोड़ा सही करने दो. यस, स्टार्ट. एक सेकंड मैम. हाँ, दिख नहीं रहा. हाँ, 1 मिनट मैम. पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 47. 47 ना. मैं 1 मिनट बुक में मेरे पीडीएफ में कर लेती हूँ. ये है स्क्रीन पे, यू कैन गो विद द स्क्रीन ऑल्सो. मैम बट वो बहुत ज्यादा स्मॉल या तो बहुत ज्यादा जूम हो जाता है. नहीं, देखो मैं वो करती हूँ. अच्छा. दिख रहा है अभी? अभी हाँ सही है. हाँ, ठीक है, मैं चलो. रीड करूँ. हाँ हाँ. A very intelligent student from your class is stressed to achieve better grades. He is unable to make new friends or enjoy life. He does not share things with others, and sometimes he is so depressed that he falls sick very often because becomes nervous at things like losing marks or losing his rank in the class. The term emotional intelligence was coined by Michael Beldock in 1964. Daniel Goleman further elaborated the term. According to Meyer and Selve, emotional intelligence मैम आगे is the ability to perceive one's own and others' emotions, to discriminate among them, and to use that information to guide one's thinking and action. It has four proposed abilities: perceiving emotions, using emotions, understanding emotions, and managing emotions. People with high emotional intelligence are well
adjusted individuals because they can deal with others and themselves in a better way. They can control their emotions and are able to handle the situation in appropriate way. They don't get panic easily. As a result, they are able to come up with proper solution in a crucial situation. मैम नीचे Nowadays, emotional intelligence is given more importance than socialistic intelligence as it helps for normal adjustment of the individual. Activity 4. Given the emo- given the given that emotional intelligence has four proposed abilities: perceiving emotions, using emotions, understanding emotions, and managing emotions. What characteristics should be developed by the individual to possess these abilities? Think about the people who, according to you, have high emotional intelligence. What characteristics do they possess? Watch the following video to understand more about emotional intelligence. Now come to the components of emotional intelligence. Start করে দিয়ে আছে, হ্যাঁ? Important. Okay. Components of emotional intelligence. Emotional intelligence has five components: self awareness, self regulation, self motivation, empathy, and effective relationship social skills. Let us look at them one by one. Self awareness. Are you aware of your strengths and weakness? Can you describe them? Can you describe your efforts to overcome your weaknesses and enhance your strengths? This ability is called self awareness. It is the ability to recognize and understand your own emotions. Well adjusted individuals are aware of their actions, moods, and emotions. Self regulation. Just imagine you are with strangers and you feel like crying aloud. Have you ever controlled yourself in such situation? Have you ever controlled your laughter just because you felt that the other person would feel bad? Self regulation is controlling the expression of our emotions. It is the ability to express ourselves appropriately at right place and right time. Self motivation. It is one's motivation to change. Have you ever gone for a trek or helped out a physically challenged person just because you wanted to? Self motivation is doing a particular thing just because you want to. You are setting the goal and try to seek it without any external reward. You enjoy that task so much that you forgot your inhibitions. Empathy. Have you ever cried when your friend had a bad experience? Do you feel like helping those who are poor and needy? Have you ever shared your books and notes to a student who is in need of help? This is empathy. Empathy is putting yourself into someone else's shoes. It is understanding the situation from that person's point of view. It is the ability to understand how exactly others are feeling in a given situation. Refer to figure number 5.2. You feel your pain and so. एक minute. Social, Now, skill- social skill class वाला कर दो बस. social skills. Have you ever worked cooperatively in a team? Social skills is the ability to interact well with others. Some important social skills include active listening, verbal communication skills, non-verbal communication skill, leadership, and persuasiveness. Yes, okay. So just give a second to me. I'll explain you. Just give a second. Yeah, miss.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे हम देखेंगे, एक मिनट, ये लास्ट वाला भी हाई इंटेलिजेंस का, ये हमने देख लिया था। वी आर ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस 5.1। आजकल हम देखेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हम काफी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कभी भी हमें ऐसा कुछ होता है, अरे यार किसी ने हमको दो बात बोल दिया और हमने सामने सामने उसको हंस के ले लिया, ठीक है, तो उस इमोशनल इंटेलिजेंस को रखना बहुत जरूरी है। हर चीज पे हम रिएक्ट नहीं कर सकते। तो वो चीज एक ध्यान हम रखते हैं, तो इसका मतलब वी आर अ नॉर्मल एडजस्टमेंट हम करते हैं ये चीजों पे। नाउ एक्टिविटी 4 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो भी इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके चार पर्पस एबिलिटीज का: परसीविंग करना, परसीविंग इमोशंस, अपने इमोशंस को यूज करना, अंडरस्टैंड इमोशंस और मैनेजिंग इमोशंस। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो हम डेवलप कर सकते हैं टू पोसेस दिस एबिलिटी। तो द लास्ट चीजें एग्जांपल्स दी हुई है, दैट इज दी कंपोनेंट में इंक्लूड होता है वो। सो वी कैन सी हियर द कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में मेन इंपॉर्टेंस यहाँ पे पांच चीजें हैं, 5 components आर देयर। द फर्स्ट वन इज द सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन और एम्पैथी, एंड प्लस द फाइनली दैट इज सोशल स्किल। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सेल्फ 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 एम्पैथी एंड अगेन सोशल। सारी चीजें पांचों पॉइंट है जो अपने से कनेक्टेड है, एक इंडिविजुअल से कनेक्टेड है। ठीक है, now we'll see about the self awareness। जनरली अगर लिया जाए तो जितने लोग हैं, ठीक है, आप, मैं, कोई और भी, हम सबको अपने बारे में पता होता है। हम सबको पता है कि हमारी वीकनेस और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमने हमेशा देखा है कि हम कितने अवेयर रहते हैं अपने आप से। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, आर यू अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? क्या आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का अंदाजा है? कैन यू डिस्क्राइब देम? बता सकते हो, मुझे ये चीज पसंद नहीं है लेकिन मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये चीज बहुत पसंद है जो मैं चीज दूसरों को भी मोटिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, कैन यू डिस्क्राइब योर एफर्ट टू ओवरकम योर वीकनेस? आपके अंदर कुछ वीकनेस है लेकिन अभी भी आप उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हो। वर्कआउट कैसे करोगे आप? किसी और चीज को इम्पोर्टेंस देके। ठीक है, enhance your strength, this ability is called as self awareness। इस चीजों को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। छोटा सा एग्जांपल, आप बीमार हो, ठीक है, आपको सर्दी खांसी बुखार हुई है या तो कहीं पे नॉर्मली पेन हो रहा है, आपको पता है कि ये दवा लेने से मेरा पेन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हमको पता है ये चीज अवॉइड करने से मुझे कितना बेनिफिट है, ये चीज मुझे एक्सेप्ट करने पे मुझे कितना बेनिफिट है। बेनिफिट देखो दोनों में है, आप चीजें कुछ अवॉइड कर रहे हो उसमें भी बेनिफिट है, आप कोई चीजें आप ले रहे हो उसमें भी बेनिफिट है। सो वी नो अबाउट अवर स्ट्रेंथ और वीकनेस। जिस तरीके से दवाइयाँ लेने से पेन खत्म होता है, उस तरीके से एक राइट डिसीजन लेने से हमें पीस और कामनेस मिलती है, एंड प्लस सेटिस्फाई। ठीक है, the ability is called self-awareness. It is the ability to recognize and understand your own emotion। यहाँ पे आप अपनी खुद की एबिलिटी देखते हो कि आपके इमोशंस कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि सामने वाले ने मुझे एक लाइन बोला और उसके ऊपर मैंने 5-6 लाइन धड़ाधड़ मार दिए, वो भी विदाउट मतलब बोलते हैं ना कि एक लिमिटेशन क्रॉस करके। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ना, आप उसको दो बातें बोल सकते हो बट विदाउट यूजिंग द अब्यूज वर्ड्स। ठीक है, वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल आर अवेयर ऑफ देयर एक्शन, मूड एंड इमोशंस। यहाँ पे जो अपने आप को खुद समझता है, खुद अपने आप के अंदर अवेयरनेस है, तो कभी भी वो किसी के सामने कुछ भी बोलेगा, जैसे एक्शन हो गया, मूड, इमोशंस, तो चीज खुद हैंडल करेगा। उसे पता है कि कब, कहाँ और कैसे उससे बात करनी है। ठीक है, नाउ कम टू द सेल्फ रेगुलेशन।
जस्ट इमेजिन यू आर विथ सेल्फ रेगुलेट करना, ठीक है, इसमें आते हैं। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को हम देखेंगे। सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ रेगुलेशन, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, बट जस्ट मी रिमाइंड इन दिस वीक ओनली, ठीक है। चलो देन एवरीवन, बाय, टेक केयर।